یہ کہانی ہے ہماری پیاری چھوٹی اور بہت معصوم رانو چڑیا کی، جو بہت ہی صاف دل کی تھی اور سب پر بہت جلدی بھروسہ کر لیتی تھی۔ ایک پیارے سے جنگل کے کونے میں ڈھیر سارے پھول تھے، لال لال کھلے کھلے پھول، اور اس کے کنارے ایک بہت بڑا پیڑ تھا جہاں رانو چڑیا نے اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ رانو چڑیا اتنی معصوم تھی کہ اگر گلاب کا پھول مرجھا جاتا تو وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتی تھی۔ ایک دن رانو چڑیا گلاب کے پھولوں سے باتیں کر رہی تھی کہ وہاں طوطا آ جاتا ہے۔ رانو چڑیا، یہ تم گلاب کے پھول سے کیا باتیں کر رہی ہو؟ مٹھو بھائی دیکھے نا، گلاب کا پھول مجھ سے ناراض ہے، تبھی تو وہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ رانو، تم روز پھولوں کو پانی دیتی ہو، پھر وہ کیوں تم سے ناراض ہوگا؟ اپنے گھونسلے میں جاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی شکاری آ جائے۔ شکاری کا نام سنتے ہی رانو چڑیا ڈر جاتی ہے، اس کا معصوم دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ رانو چڑیا اڑ کر جلدی سے اپنے گھونسلے میں بیٹھ جاتی ہے۔ مٹھو طوطا کبوتر کے پاس جاتا ہے۔ کبوتر بھائی، رانو چڑیا بہت معصوم ہے، پلیز اگر میں آس پاس نہ ہوا تو اس کا خیال رکھنا، کوئی اس کی معصومیت کا فائدہ نہ اٹھا لے اور اس کا شکار نہ کر لے۔ ہاں مٹھو طوطے، مجھے اندازہ ہے، آپ بے فکر رہیں، میں خیال رکھوں گا۔ ایک دن رانو چڑیا جنگل سے دانا کھانے جاتی ہے کہ وہاں گوری کوی آ جاتی ہے۔ ارے یہ سندر سی چڑیا کون ہے؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ گوری کوی رانو چڑیا کے پاس جاتی ہے۔ ارے یہ چھوٹی چڑیا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ رانو چڑیا گوری کوی کی کڑکدار آواز سے ڈر جاتی ہے۔ کیا یہ آپ کا دانا ہے؟ لے لیں، آپ یہ دانا لے لیں، میں اور کھوج لوں گی۔ گوری کوی جان گئی تھی کہ یہ چڑیا بہت معصوم ہے، تبھی وہ غصے سے کہتی ہے، نہ چڑیا نہ، ایسے کیسے دانا لے لوں؟ تم نے میرے علاقے میں چوری کی ہے۔ رانو چڑیا چوری کا سن کر ڈر جاتی ہے۔ نہیں، میں چور نہیں ہوں، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ چل میرے لیے میٹھا پھل لا اور پورا مہینہ مجھے بھوجن لا کر دے، ورنہ میں تیرے پر کاٹ دوں۔ رانو چڑیا کا معصوم دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رانو چڑیا جلدی سے میٹھے پھل کی کھوج میں اڑتی ہے۔ ابھی رانو چڑیا میٹھا پھل توڑ رہی تھی کہ اسے مٹھو طوطا مل جاتا ہے۔ رانو چڑیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ مٹھو بھائی، ایک کوی ہے، وہ کہتی ہے میں نے دانا کھا کر اس کے علاقے سے چوری کی ہے، اب وہ میٹھا پھل مانگ رہی ہے، اگر میں اسے میٹھا پھل نہ دوں تو وہ میرے پر کاٹ دے گی۔ مٹھو بھائی، پھر میں اڑوں گی کیسے؟ چوری؟ اس گوری کا باغ تھا پکا جو چوری کی، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ دوسری طرف گوری کوی کالو کوے سے کہتی ہے، کالو کالو، پورے ایک مہینے کے میٹھے پھلوں کا انتظام کر لیا ہے میں نے، اب محنت وہ کرے گی اور مزے ہم کریں گے۔ وہ کیسے گوری؟ پھر گوری کالو کو ساری بات بتاتی ہے۔ واہ گوری واہ، مزہ آ گیا، چلو چلو باہر چلو، وہ آتی ہوگی۔ دونوں کوا اور کوی اپنے گھونسلے سے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں رانو چڑیا کے ساتھ مٹھو طوطا آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ارے یہ موٹی چونچ والا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بہت چالاک ہے، یہ میرا راز کھول دے گا۔ اتنے میں رانو چڑیا اور مٹھو طوطا پاس آ جاتے ہیں۔ رانو، بتانا ذرا، تم نے دانا کہاں سے کھایا تھا؟ وہ سامنے زمین سے۔ گوری، تم نے جنگل خرید لیا ہے کیا؟ نہیں مٹھو بھائی۔ پھر تم نے اس معصوم کو کیوں ڈرایا؟ کیوں اس سے پھل منگوائے؟ وہ تو ایسے ہی دوستی میں، یہ چڑیا میری اچھی دوست ہے۔ گوری، تمہاری چالاکی کو میں خوب سمجھتا ہوں، خبردار اگر اس معصوم کو تنگ کیا، ورنہ کیا؟ گوری غصے سے چلاتی ہے۔ میں تمہاری چیل رانی کو شکایت کروں گا۔ چیل رانی کا نام سن کر گوری کی تو جان ہی نکل جاتی ہے۔ نہیں مٹھو طوطے، اب ایسی بھی کیا بات ہے جو تم چیل رانی تک شکایت لے کر جاؤ گے؟ چڑیا تم جاؤ، چلی جاؤ، میں تم سے میٹھے پھل نہیں مانگتی۔ مٹھو طوطا اور رانو چڑیا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ رانو چڑیا، تم اتنی معصوم کیوں ہو؟ تم آگے سے سوال کیوں نہیں کرتی؟ یہ پیڑ، یہ زمین، پھل پھول سب اوپر والے نے بنائے ہیں،
तुम जहाँ से चाहो खा पी सकती हो। शुक्रिया मिठू तोते, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी और अगली बार कभी भी किसी की बातों में नहीं आऊंगी। दूसरी तरफ गोरी कवि अपनी उस बेइज्जती पर बहुत ताव खा रही थी। अच्छा भला महीने भर के भोजन का इंतजाम हो गया था, उस मिठू ने आकर सब बर्बाद कर दिया। मैं उस चिड़िया को सजा दूंगी, उसे अब जीने का कोई हक नहीं। गोरी बस करो, तुम फिर से कोई चाल चलोगी? अब की बार अगर चील रानी तक तुम्हारी शिकायत गई तो मैं हरगिज तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तुम मत देना साथ, लेकिन उस चिड़िया को मैं जिंदा नहीं रहने दूंगी। बेफिक्र रहो, मेरा या तुम्हारा नाम नहीं आएगा। गोरी कवि अपने घर से निकलती है और सीधी लोमड़ी के पास जाती है। लोमड़ी और गोरी कवि आपस में बहुत अच्छी सहेलियां थीं। आओ गोरी आओ, आज कौन सा शिकार लाई हो? जंगल के उस कोने में जहाँ फूलों वाला बाग है, एक चिड़िया रहती है। वो बहुत मासूम और भोली है, लेकिन एक तोता उसकी रखवाली करता है। तुम किसी तरह उस चिड़िया को खा लो। और तुम्हें क्या मिलेगा? सुकून, शांति। मुझे बहुत शांति मिलेगी, मेरा बदला पूरा होगा। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। लोमड़ी जल्द ही उस फूलों वाले बाग में पहुंच जाती है। लोमड़ी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। रानो चिड़िया अपनी फितरत की वजह से लोमड़ी के पास एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। क्या हुआ लोमड़ी मौसी? मेरा अंगूर खाने को दिल कर रहा है। मैं भूखी हूँ, लेकिन अंगूर ऊंची डाल पर है, मैं वहां तक नहीं जा सकती। तुम प्लीज मुझे वो अंगूर ला दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और अंगूरों के बाग में पहुंच जाती है। कबूतर रानो चिड़िया को बाग में जाता देखकर पीछे आ जाता है। रानो, खबरदार बाग में मत उतरना। रानो हवा में वहीं रुक जाती है। कबूतर और रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो, तुम उस बाग में क्यों जा रही हो? तुम्हें अंदाजा नहीं, वहाँ एक बहुत बड़ा जाल लगा है। वो बाग एक इंसान का है। कबूतर चाचा, एक लोमड़ी बहुत भूखी है, वो अंगूर मांग रही है। मैं ये अंगूर उसके लिए ले जा रही हूँ। रानो, तुम बहुत मासूम हो, चलो उस लोमड़ी का इलाज करते हैं। फिर कबूतर रानो चिड़िया को खट्टे फल तोड़ कर देता है जो अंगूर जैसे नजर आते थे। ये लो, उस लोमड़ी को जाकर दो, और हाँ, दूर से फेंकना। रानो चिड़िया कबूतर की बात समझ जाती है। रानो चिड़िया वो अंगूर लिए लोमड़ी की तरफ जाती है। रानो चिड़िया ऊंची डाल पर बैठकर वो अंगूर की तरह का फल लोमड़ी के पास फेंकती है। ये लो लोमड़ी मौसी, ये खाओ। लोमड़ी जल्दी से अंगूर खाने लगती है। थोड़ी देर बाद ही लोमड़ी का मुंह खट्टा हो जाता है और वो थू थू करने लगती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चिड़िया, तुमने मुझे धोखा दिया। लोमड़ी मौसी, तुम अपना ख्याल करो, अपना मैं देख लूंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है, क्योंकि रानो चिड़िया जान गई थी कि इतना अच्छा और मासूम होना भी ठीक नहीं। तो प्यारे दोस्तों, अच्छा और नेक दिल होना अच्छी बात है, लेकिन इतने मासूम मत बनो कि कोई आपको इस्तेमाल करे और आपको खबर ही ना हो। इस दुनिया में जीना है तो थोड़ा होशियार तो होना ही पड़ेगा। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की माँ और गोरी कवि की माँ बहुत अच्छी सहेलियाँ थीं। दोनों की आपस में गहरी दोस्ती के कारण उनका घरों में आना जाना बहुत था। एक दिन गोरी कवि अपनी माँ के साथ रानो चिड़िया की माँ से मिलने आती है। कैसी हो सहेली, तुम भी मेरी तरह बूढ़ी हो गई हो। हाँ कवि बहन, लेकिन देखो, मेरी बेटी हूबहू मेरी तरह है और तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह। इन्हीं में अपनी जवानी देख लिया करो। फिर दोनों सहेलियां हंसने लग जाती हैं। अरे सहेली, हम तो काम करने वाले पक्षी थे, ये आजकल के पक्षियों में वो बात कहाँ। हाँ कवि बहन,
हमारे ज़माने में फ़ोन नहीं हुआ करते थे। आजकल के पक्षी तो बस फ़ोन पर ही गुजारा करते हैं। गोरी बेटी, तुम रानो के पास जाओ, वो अपने कमरे में होगी। गौरी कभी आहिस्ता आहिस्ता चलती रानो चिड़िया के कमरे में जाती है। जी, आप कौन? अरे इतना नखरा! मेरे घर में अजनबी पक्षी घुस आया है। माँ, माँ कहाँ है आप? अरे अरे, ये कितनी बदलहास चिड़िया है। रानो की आवाज़ सुनकर उसकी माँ और गौरी कवि की माँ फौरन आ जाती हैं। क्या हुआ बेटी? माँ, ये कवि कौन है? रानो बेटी, ये मेरी सहेली की बेटी है। तुमने शायद पहली बार देखी है। ओह अच्छा, आइए आइए। नहीं, रहने दे बहन। माँ चलो, बहुत इज्जत हो गई। वैसे भी जब से आई हूँ इन गरीबों के घर से लहसुन और प्याज की बदबू आ रही है। गौरी, अपनी चोंच बांध रख। मैं पहली बार अपनी सहेली से मिलने आई हूँ और तुम यहाँ भी आते ही शुरू हो गई। माँ चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रुकना, बस बहुत मिल लिया। बुरा मत मानना सहेली, ये जरा नकचड़ी है, बहुत नाजों से पली है, इसलिए जल्दी घुलती मिलती नहीं है। हमने नया घर बनाया है, मैं पैगाम भेजूंगी, आप सब जरूर आना। गौरी की माँ जल्दी जल्दी रानो चिड़िया की माँ से कहती है और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ जाती है। माँ, ये आपकी सहेली की बेटी तो नमूना ही थी। देखो कैसे 2 मिनट में कितना कुछ सुना गई है। रानो बेटी, अमीरों के बच्चे ऐसे ही होते हैं, तुम फिक्र ना करो। दूसरी तरफ गौरी कवि घर जाकर अपनी माँ से कहती है। माँ, तुम्हें सारा जंगल छोड़कर वही गरीब पक्षी मिले, तुमने उनका घर देखा था? मेरा तो वहां 2 मिनट में सांस रुक गया था। गौरी बेटी, ऊपर वाले से डरो। तुम में इतनी अकड़ है कि तुमने उस घर में पानी भी नहीं पिया। माँ, तुम उन्हें दावत में बुलावा दे आई हो, तुम मेरी दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवा दोगी। क्या ही जरूरत थी उन्हें दावत में बुलाने की। बस चुप, एकदम चुप। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया हमने। अब एक शब्द और नहीं। आने तो उस चिड़िया को ऐसा मजा सिखाऊंगी, सब याद रखेंगे। गौरी की माँ की शादी अमीर कवि से होने की वजह से उनके हालात बदल गए थे, जबकि रानो चिड़िया की माँ की शादी एक मजदूर चिड़े से हुई थी। अब इतने सालों बाद कवि को अपनी बचपन की सहेली का पता चला था, तो वो मिलने आ गई थी और गौरी ने जाते ही फसाद डाल दिया। जंगल में रिवाज था, जब भी कोई पक्षी अपना घर बनाता तो सब दावत में शरीक पक्षी एक एक डिश लेकर जाते थे। जल्द ही कवि के घर से उल्लू पैगाम लाता है। चिड़िया माँ जी, कवि मालकिन ने संडे को दावत रखी है, दोपहर के समय दावत का इंतजाम है, आप जरूर आना। रानो चिड़िया की माँ खुश हो जाती है और अगले दिन दावत का इंतजाम करने लगती है। रानो बेटी, मेरी सहेली को जलेबी बहुत पसंद है, चलो मिलकर जलेबी बनाने का सामान ले आते। रानो चिड़िया अपनी माँ के साथ जलेबी बनाने का सामान लेने चली जाती है। वापसी पर दोनों माँ बेटी जैसे ही सामान लेकर निकलती हैं, एक ऑटो तेजी से आता है और रानो चिड़िया की माँ को टक्कर मारकर चला जाता है। माँ, माँ तुम ठीक हो? हाय, जालिम ने बहुत बुरा मारा। बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से अपनी माँ को घर लाती है। माँ चलो बुलबुल डॉक्टर के पास चलें। अरे बेटी, उसने ऐसे ही कड़वी दवाइयाँ देनी है, तुम जरा दूध में हल्दी डाल कर ला दो। रानो चिड़िया जल्दी से हल्दी वाला दूध अपनी माँ को लाकर देती है। रानो बेटी, अब मैं तो इस हालत में रसोई में जाने से रही। मेरी बेटी, मेरी लाज रख लो, तुम ही जलेबी बना लो। माँ, मैंने कभी जलेबी नहीं बनाई, चलो तुम्हें मैं बताती हूँ। रानो चिड़िया अपनी माँ के बताए तरीके से जलेबी बनाने लगती है। संडे को सुबह सुबह गाड़ी हॉर्न देती है। रानो चिड़िया और उसकी माँ गाड़ी में बैठकर गौरी कवि के घर की तरफ निकलती हैं। गौरी कवि की माँ ने एक बहुत बड़ा घर बनाया था। माँ, ये तो सच में बहुत अमीर है। गौरी कवि भी वहाँ अपनी सहेलियों के साथ मौजूद थी। लो आगे भिखारी,
सहेलियों, आओ तुम सबको जंगल के सबसे गरीब पक्षियों से मिलवाओ। माँ देखो, अगर ये सब होना है तो मैं अभी वापस जा रही हूँ। गौरी और पिंकी कवि वहाँ आ जाती हैं। गौरी, वैसे ये चिड़िया कितनी सुंदर है, देखो ना, इसके पंख कितने चमकदार हैं। इतने में गौरी की माँ आ जाती है। आओ सहेली आओ। रानो चिड़िया जलेबियों का थाल गौरी कवि की माँ के हवाले करती है। सहेली, मेरी बेटी ने पहली बार रसोई में कदम रखा है। कवि बहन, उम्मीद है तुम्हें मेरी बेटी का खाना पसंद आएगा। क्यों नहीं आएगा? हम भी देखें गरीब पक्षी कैसा खाना बनाते हैं। गौरी कवि थाल से जलेबी उठाकर पिंकी को देती है और खुद भी खाती है। वाह गौरी, ऐसी स्वादिष्ट जलेबी मैंने आज तक नहीं खाई। हाँ, स्वादिष्ट है, पर इतनी नहीं कि हमारे महल के खानों से बढ़कर हो। गौरी चुप कर, आज की दावत में तुमने क्या बनाया ये बताओ। गौरी चुप हो जाती है। इतने में गौरी के हाथ से कीमती मोती गिर जाता है। मोती गिरकर एकदम गायब हो जाता है। गौरी पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मोती नहीं मिलता। अरे गौरी बेटी, तुम सब्र करो, मेरी बेटी खोज देगी। रानो चिड़िया जल्दी से इधर उधर जाती है। मेज के नीचे, बर्तनों के नीचे, हर जगह देखती है। आखिर मोती एक पौधे की जड़ों में पड़ा मिल जाता है। रानो चिड़िया वो मोती लाकर गौरी को दे देती है। गौरी कवि बहुत शर्मिंदा थी। रानो चिड़िया, तुम दिल की कितनी अच्छी हो। अगर आज ये मोती खो जाता तो मैं शायद अपने आप को कभी माफ ना करती। दौलत चीज़ों से होती है, लेकिन अच्छा दिल सच में पक्षी को अमीर बनाता है। आज से मैं कभी किसी को गरीबी की वजह से कमतर नहीं समझूंगी। गौरी कवि रानो चिड़िया को गले से लगा लेती है, क्योंकि गौरी ने सीख लिया था कि असल अमीरी अच्छे इखलाक और ईमानदारी से होती है। रानो चिड़िया और उसकी माँ एक अच्छी सी दावत खाकर अपने घर की तरफ वापस लौट आती हैं। बूढ़ी चिड़िया को आज अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।